put on the recording. First of all, we have started this chapter that is network layer. Okay, all of you please focus. We don't care that people are joining or not, but those who are joining, so let your time be like investment. And as I told you that you need to take out something from that particular timing whatever you are investing over here. Okay, so last time we have started this particular chapter that is network layer. I think from last two session this is the fourth chapter which is having very high weightage, among all the chapters it is highly weighted. I think around 12 12 marks, no, 12 hours. Okay, 12 hours. So I don't know exactly weightage we need to calculate it, but in terms of the timing which it requires to complete this particular chapter is very high among all the chapters. Okay, so it requires around 12 hours. Okay, so 12 hours means समझ लो आपको 4 weeks यानी एक महीना complete is required for completion of this particular chapter. But still we will not invest that much amount of time because कहीं कहीं पे हम लोग को adjust करना होता है. Okay, so this particular chapter that is network layer we have started, and we came to know that your network layer provide host to host delivery. Okay, and after that we have gone through the services which are being provided by the network layer, which in which packetizing, राउटिंग, ठीक है, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, देन फॉरवर्डिंग एक राउटर से दूसरे राउटर, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दैट इज फॉरवर्डिंग. Sorry. Error control is as I told you that error control is also very important, because at each and every level we need to make sure that our packet is error free. If you remember this statement, then you can easily remind yourself कि हाँ भाई कि error हर एक जगह पे check करना है. Flow control, the synchronization between the sender and the receiver is must. Okay, otherwise what will happen, एक भेज रहा है, बोलते हैं ना पास पास गेम, मतलब पास पास करते हैं, बहुत सारे लेबर्स होते हैं, तो लेबर्स एक दूसरे को सामान देते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ देते हैं. तो अगर वो ज़्यादा कैपेसिटी का देगा तो ये हैंडल नहीं कर पाएंगा. इन द सेम वे सेंडर एंड रिसीवर्स आर having the scene like if sender will generate more data and will send more data, and if your receiver cannot handle it, then that packet will be lost. Okay, in that result what you have to do, you need to resend it. Okay, then resend के चक्कर में ऐसा ना हो कि कहीं आपका कंजेशन के लाले पड़ जाए. So flow control is to be maintained, okay, with proper technique, with proper strategy, and then afterward congestion control will be learning about the congestion control in this particular chapter. And after that, quality of service, as you know, everywhere the quality is measured, quality is considered, because quality के हमेशा पैसे होते हैं, as we all say. So quality in terms of whatever data we are sending, our data may be text, maybe audio, video, images. So this is our multimedia. So that data which when it is being read by the receiver, तो उनको डेटा सही मिलना चाहिए, क्वालिटी का डेटा मिलना चाहिए. ओके, ऐसा हम लोग भी देखते हैं ना, व्हाट्सएप कॉल क्वालिटी एकदम डिले हो के आ रही है, क्वालिटी इज नॉट गुड. ओके, वीडियो कॉल करते हैं तो वहाँ पे क्वालिटी पूछता है every time that particular application asks you after disconnecting, it asks you that okay, how was the quality of this particular call. So they're taking feedback from from every call. Okay, and so that they can improve it. Then last one has security. So security is the module which is required in our at our network layer, so that security of our packet, security of our transaction can be done very easily. So these are the services which are provided by the network layer. Okay, तो ये हम लोगों ने देखा था. Now we are moving to the next topic, that is network layer performance. Okay, so today we'll be learning that how we can measure the performance of the network layer. Okay, just try to understand. कुछ ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल और क्या बोलते हैं इसको, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, दैट इज नेटवर्क लेयर परफॉर्मेंस. how you can measure the performance of network layer. नेटवर्क लेयर कैसी काम कर रही है उसका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए we can check in terms of delay. ओके, हम डिले क्या होता है, हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं आज डिले हो गया यार, मुझे मतलब आज लेट हो गया. ठीक है,
या मैं फॉर एग्जांपल बोलता ना, मैं घर से यहाँ तक पहुंचा तो मुझे घर से यहाँ तक आने में लेट हो गया, तो कोई कोई लोग बोलते हैं, मुझे डिले हो गया। ओके, तो एक तो ये पैरामीटर है। सेकंड पैरामीटर इज थ्रूपुट। ओके, और थ्रूपुट whatever you say. So throughput is a one, we can say a term which is like you can explain in this way कि from at any moment of time at for example ये आपका वायर है, केबल है, ठीक है, सिंपल। तो इस केबल में से हम डायरेक्ट नेटवर्क केबल ही लेंगे ना, समझ में आने के लिए। सो दिस इज माय नेटवर्क केबल। ओके, सो इस पूरे नेटवर्क केबल जो मेरा जा रहा है, या ये रहा आपका सोर्स। ओके, और ये रहा आपका डेस्टिनेशन, ठीक है। अब इन सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर केबल, you can measure the throughput. Okay, how this throughput can be measured? How many bits are passed? Okay, how many bits are passing per second? Okay, so मतलब उसको और थोड़ा जनरल अगर हम लोग बोलेंगे तो how many bits, number of bits passed per unit of time. Okay, number of bits passing per unit time. Okay, एक यूनिट के टाइम में कितने बिट्स यहाँ से गुजरते हैं, दैट इज बेसिकली थ्रूपुट। अगर मैं बोलूँ कि 5 बिट्स पर सेकेंड जा रहे हैं, तो दैट इज द थ्रूपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर मीडियम और केबल, और जिसको बोलेंगे हम लोग लिंक, ठीक है। तो ये होता है आपका थ्रूपुट। इस थ्रूपुट से भी पता, अगर ज़्यादा थ्रूपुट मिला तो समझ लो नेटवर्क लेयर आपका बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, और अगर नहीं मिल रही है तो समझ लो कि भाई यार थोड़ी सी काम चोरी हो रही है। ओके, देन पैकेट लॉस। पैकेट लॉस इज अगेन important one, because as I told you and you also remember it, that at the source and destination we are having two different queues. Okay, if you remember, then उन queue की मदद से हम लोग क्या करते हैं, your packets are sent via that queue. Let me show you with the help of this pen tablet. I bought it today. Just give me a second, not a second, give me half minute, give me a second. वाह, किधर है? दिस इज माय माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड। ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू। अच्छा, पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास में। डिले, थ्रूपुट, पैकेट लॉस एंड कंजेशन कंट्रोल। इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट के दीज आर द वाइवा क्वेश्चन। ओके, दीज आर वाइवा क्वेश्चन। तो नेटवर्क लेयर परफॉर्मेंस, network layer performance can be measured with the help of the 4 parameter. Number 1 is delay. Okay, number 2 is throughput. Number 2 is throughput. Number 3 is packet loss. Even though that is packet loss. And number 4 is congestion control, which is very congestion control. Okay, I hope that everyone is looking over here. So let us move to the first one. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक को डिस्कस, क्योंकि आगे तो डिस्कस करना ही है, तो उसको हम लोग और थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं। एक सेकंड, हाँ चलो यहाँ पे आगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूर डिले, जिसको यूजुअली हम लोग बोलते हैं ड्यूरेशन भी बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि मतलब है ना, कितना टाइम लगा, कितना ड्यूरेशन लगा। सो दैट इज हमारे नेटवर्क के अंदर उसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब डिले करके ही बोल सकते हैं। So basically आपका delay is nothing but a time, or we can say a duration. Okay, the delay in a network can be divided into 4 different types of delay हो सकते हैं, which are possible. First is the transmission delay, second is propagation delay, third is processing delay, and number 4 is queuing delay. Again I am telling you, this is the viva question, what is delay? Okay, या फिर स्टार्टिंग से आपको लेकर आएंगे कि भाई साहब आपको पूछेंगे कि भाई व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स व्हिच अफेक्ट द द नेटवर्क लेयर का परफॉर्मेंस। ओके, then you need to clarify that the network layer performance can be measured or can be considered with the help of these 4 parameter. Number 1 is delay. Okay, acha, delay, what are the different types of delay? Okay, we have 4 types of delay, that is transmission, propagation, processing and queuing delay. Okay, when you say transmission, propagation and all these delay, देन उसके उसके बारे में पूछेंगे आपको, तो उसकी फिर आपको डेफिनेशन बताना पड़ेगी।
कमिंग टू द फर्स्ट टाइप्स ऑफ डिले, ओके, ट्रांसमिशन डिले। अब ट्रांसमिशन डिले तो आप खुद समझदार हैं, ट्रांसमिशन का जो टाइम रहेगा उसको बोलेंगे ट्रांसमिशन डिले। द ट्रांसमिशन डिले इज लॉन्गर फॉर अ लॉन्गर पैकेट एंड शॉर्टर इफ द सेंडर कैन ट्रांसमिट फास्टर। So if you have same size of packet, you have same size of packet, but still if you can send it faster, if you can send it fast, then the delay will be short, okay। तो यहाँ पर हमारे पास में 4 तरह के डिले हैं, ठीक है। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, खाली बस आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आपका जो फर्स्ट वन है दैट इज ट्रांसमिशन डिले। तो ट्रांसमिशन डिले में बेसिकली आपका फॉर एग्जांपल एक पैकेट है, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं खाली, फॉर एग्जांपल 200 केबी का, ठीक है। तो 200 के का अगर आपका पैकेट है तो ये सेंडर से रिसीवर तक जाने में, फॉर एग्जांपल सेंडर से रिसीवर अगर कभी आपका ये पैकेट है तो फॉर एग्जांपल अगर एक्स टाइम ले रहे हैं, एक्स टाइम अगर ले रहे हैं, ओके, तो ये भी हो सकता है। और अगर आपका सेंडर इसको फास्ट भेज सकता है तो इसके लिए हो सकता है मैं तो वाई टाइम भी ले, ठीक है। या फिर अगर कभी जो दूसरी इसकी और रीजन होती हो, अगर हो सकती है कि अगर आपका पैकेट अगर कभी कम साइज का है, फॉर एग्जांपल 100 के का है, तो उसके लिए कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ ट्रांसमिशन डिले, ट्रांसमिशन टाइम फॉर एनी पैकेट। फॉर एग्जांपल आई हैव दिस पैकेट, आई हैव दिस पैकेट, सो 200 के को सेंड करने के लिए एक्स टाइम लगता है, ठीक है। और 100 के को सेंड करने के लिए 100 के को सेंड करने के लिए वाई टाइम लगता है। सो दिस इज फॉर अकॉर्डिंग टू द पैकेट। या फिर एक्स्ट्रा केस में, रेयर केस में, इफ योर सेंडर कैन सेंड इट फास्टर देन इट इज ओके, नॉट अ बिग डील। तो बेसिकली ट्रांसमिशन डिले इज नथिंग बट time which is required for sending any packet, okay, or for transmission of any packet from sender to the receiver, okay, that's all। Second is propagation delay। ट्रांसमिशन डिले में कुछ है नहीं, आई डोंट थिंक इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। बस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक है कि जैसा मतलब आपका रहेगा, जैसा पैकेट रहेगा उस हिसाब से आपको टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 100 MB of data, you want to copy from C drive to D drive, so just a simple example, everyone can understand it, okay। So you want to copy 100 MB of data from C drive to D drive, how much time it takes, okay। You have i5 processor and you have 8 GB of RAM and you have HSD too, okay। So if you are having all these configuration, then with this particular configuration you can send and you can transmit that particular amount of folder, that is 100 MB का folder in 5 सेकेंड 10 सेकेंड कितना आपको लगेगा, राइट, ठीक है। बट उसी जगह पे अगर मैं बोलूँ कि आपके पास में 5 GB का डेटा है which you want to transmit from, which you want to copy from C drive to D drive, then what will happen, okay, how much time we have same configuration, okay, we have this ideal configuration, and with this ideal configuration how much time it requires for 5 GB, it may requires around 5 minutes, okay। तो 4 मिनट 5 मिनट इतना आपको ले सकता है, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली मतलब एकदम हो सकता है कुछ आगे पीछे, बट इतना टाइम लेगा। तो क्या हुआ, छोटे पैकेट के लिए कम टाइम, बड़े पैकेट के लिए बड़ा टाइम, बस वही चीज है यहाँ पे। तो ट्रांसमिशन डिले लॉन्गर फॉर अ लॉन्गर पैकेट एंड शॉर्टर फॉर द शॉर्टर पैकेट, इन द रेयर केस शॉर्टर इफ द सेंडर कैन ट्रांसमिट इट फास्ट। अगर आपके पास में i3 PC होता और HDD हार्ड डिस्क होती तो उस 100 MB को भी आपको 1 मिनट लग जाते, लगते नहीं लगते, है ना। तो और अगर आपके पास में कैपेसिटी अच्छी है, आपका i9 प्रोसेसर है और वही आपका 5 GB का डेटा है, और 5 GB के डेटा को सेंड करने के लिए आपका i5 प्रोसेसर ले रहा है अराउंड 5 मिनट्स, ओके। वहीं पर आपका i9 प्रोसेसर विद 16 GB ऑफ रैम और 32 GB ऑफ रैम एंड ये उसके अंदर एकदम अच्छा, मतलब आपका अच्छी कॉन्फ़िगरेशन वाला है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 5 GB के डेटा को अराउंड मुश्किल से 1 मिनट 1.5 मिनट लगेगा, ठीक है, वो आपका ट्रांसफर कर देगा। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन और अकॉर्डिंग टू द whatever setup we have। So in the same way, if your sender can transmit the data fast, then it will be sent in the less time, okay। तो हर जगह पर हर पैकेट के लिए हर एनवायरनमेंट के अंदर ट्रांसमिशन डिले अलग अलग रहेगा। समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं है। दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिले। नंबर 1 ट्रांसमिशन डिले। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रोपेगेशन डिले, ओके। सो प्रोपेगेशन डिले, प्रोपेगेट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है, ये बात दिमाग में रखो। अब पढ़ते हैं। प्रोपेगेशन डिले इज द टाइम इट टेक्स फॉर अ बिट
टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, अब यहाँ पर जरा डायग्राम से समझने की कोशिश करो। वी आपका है प्रोपगेशन डिले, प्रोपगेशन, अरे मैंने लेना भूल गया, दिस इज प्रोपगेशन डिले, लिखना प्रोपेगेशन डिले। ठीक है, मैंने लिख दिया। तो प्रोपगेशन डिले ये बोलता है कि द टाइम इट टेक्स फॉर अ बिट, एक बिट को सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ये है प्रोपगेशन डिले। ठीक है, तो ये आपका रहा सेंडर, ये रहा आपका रिसीवर। ओके, और यहां से यहां पहुंचने के लिए, तो यहां से यहां पहुंचने के लिए एक बिट को कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये पूरा टाइम जो आपका है, ये टाइम एक्स जिसको मैं बोल रहा हूँ, तो टाइम एक्स अगर लग रहा है एक बिट को पहुंचने के लिए, दैट इज प्रोपगेशन डिले। अच्छा, पूरे डेटा को कभी नहीं कंसिडर किया था, एक बात ध्यान में रखो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास में जो डेटा है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू वेट, जो भी आपका जो छोटे छोटे में डिवाइड किया है इसको। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल एक बिट को सेंड किए, तो हो सकता है उसके लिए टाइम हमको tx मिले, हो सकता है सेकंड डेटा को ट्रांसफर करे तो हो सकता है हमको ty टाइम लगे, और हो सकता है थर्ड डेटा को ट्रांसफर करे तो वापस से tx टाइम लगे। अब ये अलग अलग वेरिएशन क्यों है? कैन एनीवन टेल मी द रीजन फॉर दैट? अलग अलग टाइम पर अलग अलग मतलब के डिले क्यों मिलेगा हमको हर पैकेट को? क्योंकि इसको हम लोग हो सकता है कि अभी अभी सेंड किए, उसके बाद में सेकंड मतलब नेक्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट सेकंड में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, उसकी बात कर रहा हूँ। तो पहले सेकंड में इसको इसको ट्रांसफर किए, सेकंड सेकंड में इसको ट्रांसफर किए, थर्ड सेकंड में इसको, सेकंड सेकंड हो गया बोलो, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, सिक्स सेकंड, वो चलो इमेजिन कर लो एक एक बिट को सेंड होने में 1 सेकंड लग रहा है, हालांकि उतना नहीं लगता है, और भी कम लगता है। यहाँ अलग अलग वेरिएशन क्यों है? कोई कोई बोलेगा अलग अलग वेरिएशन क्यों है? अरे बोलो जल्दी। है कि नहीं, जिंदा है कि नहीं? अपने जिंदा होने का सबूत दो जरा। है ना? ओके, एक ही जिंदा है खाली बस। हेलो एवरीवन, प्लीज रिस्पॉन्ड इफ यू आर अलाइव। सब जिंदा है। ओके, आवाज नहीं आती ना तो मुझे डाउट होने लगता है। ओके, ये अलग अलग टाइम क्यों है? मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा था कि अलग अलग टाइम क्यों है। हो सकता है आपका चैनल, आपका जो मीडियम है उसमें ये टाइम मतलब पहले सेकंड में हो सकता है कि एनवायरनमेंट एकदम क्लियर हो, उस टाइम पे ज़्यादा रश ना हो, होता है ना। अभी मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल मुंबई जाऊँगा, तो ये टाइम पे मुझे मुंबई पहुँचने के लिए, अगर मैं सुबह सुबह निकल रहा हूँ तो कितना टाइम लगेगा बोलो? यहाँ से मुंबई में अगर कार से जा रहा हूँ, सो इट टेक्स मी अराउंड 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, चलो 1 घंटा पकड़ के चलते। वही अगर मैं अगर सुबह के 10 बजे जाऊँ मैं, तो वहाँ मुझे 1.5 घंटा, 1.25 घंटा लग जाएगा। और वही मैं अगर 12 बजे के टाइम पे जाऊँ तो मुझे टाइम अलग लगेगा, दोपहर में थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, शाम में जाऊँगा तो 2 ढाई घंटे लग जाएंगे। बिकॉज क्यों अलग अलग टाइम क्यों हो रहा है ये? आपका डिस्टेंस तो सेम है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ का डिस्टेंस आपका सेम है, from source to the destination the distance is same, but still why we are why it is taking different timing for the different packets, okay? because ये अलग अलग टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही जैसे हम लोग को यहाँ से मुंबई पहुंचने के लिए टाइमिंग अलग अलग लगता है, वैसे ही इनको अलग अलग टाइमिंग लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल कुछ ट्रैफिक होगा, कुछ रश होगा, इसके लिए उनको यहाँ से गुजरने में, यहाँ से जाने में टाइम लग गया है, तो पहले वाले को tx लगा, दूसरे वाले को ty लगा, थर्ड वाले को tz लगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइम लग सकता है। तो बेसिकली इसके लिए हम लोग एक एक बिट का अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। सो द प्रोपगेशन डिले इज नथिंग बट व्हाट? द प्रोपगेशन डिले इज द डिले which a bit takes time from source to the destination to travel from source to
द डेस्टिनेशन. ओके, सो प्रोपगेशन डिले इज द टाइम. ठीक है, यहाँ पर बोला डिले लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, टाइम. ठीक है, तो बेसिकली इट्स अ टाइम. ओके, लेकिन चूंकि एक टेक्निकल वर्ड है इसके लिए आप उसको ध्यान में रखो. So propagation delay is the time it takes for a bit to travel from point A to point B. That point A is nothing but your source and point B is nothing but your destination. Okay, in the transmission media, in the link, in the medium. Okay, whatever you say. So that is nothing but a propagation delay. तो याद रहना चाहिए आप लोग को. मैं इसके लिए इतना टाइम ले रहा हूँ because these are the viva question. और आपको दोबारा से ये याद करने की कोशिश ना, मतलब ना करना पड़े. एक बार में आप समझ जाए. ट्रांसमिशन डिले अकॉर्डिंग टू द पैकेट, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. ठीक है, प्रोपगेशन डिले एक बिट को सोर्स से डेस्टिनेशन में पहुंचने में कितना टाइम लगता है. थर्ड इज प्रोसेसिंग डिले. ठीक है, third is processing delay. Coming to the third one, प्रोसेसिंग डिले. ओके, अब देखते हैं प्रोसेसिंग डिले में क्या है. ओके, अब प्रोसेसिंग जो होती है बेसिकली, सो इट हैपेंस एट दी रिसीवर साइड. ओके, मैंने आपको कुछ बताया था, अगर आपको याद होगा. सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन दैट. यू हैव सेंडर एंड यू हैव रिसीवर. ओके, you have sender and you have receiver. So when a packet is transmitted from sender to the receiver, चलो ये पैकेट आपका क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ. ठीक है, ये पैकेट आपका ट्रांसमिट हुआ, यहाँ पे पैकेट रिसीव हुआ. तो पैकेट रिसीव होता है तो क्या होता है, ये दिस पैकेट इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय द रिसीवर. ओके, दिस पर्टिकुलर पैकेट इज प्रोसेस्ड बाय द रिसीवर. उसको प्रोसेस करेगा, ओपन करेगा. प्रोसेसिंग मतलब ओपन करेगा, एड्रेस चेक करेगा, डेटा चेक करेगा, उसका एरर चेक करेगा, सब कुछ चेक करेगा. ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट द प्रोसेसिंग. तो प्रोसेसिंग में एक पैकेट को प्रोसेसिंग में टाइम कितना लग रहा है, वही आपका प्रोसेसिंग डिले. लेट अस कम, विल सी. द प्रोसेसिंग डिले इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ डेस्टिनेशन होस्ट. डेस्टिनेशन होस्ट मतलब, अरे बोलो कौन, डेस्टिनेशन होस्ट मतलब आपका रिसीवर. ठीक है, सो फॉर अ डेस्टिनेशन होस्ट और रिसीवर टू रिसीव अ पैकेट. देखो अभी ये आपके प्रोसेसिंग में क्या क्या काम आते हैं, जरा ध्यान से लेके चलना. फर्स्ट, रिसीव अ पैकेट. तो भाई साहब इसने पहले रिसीव करा पैकेट. रिमूव द हेडर, सेकंड काम उसने हेडर रिमूव किया, तो रिमूव हेडर. उसके बाद में परफॉर्म एन एरर डिटेक्शन प्रोसीजर, क्योंकि भाई एरर फाइंड आउट करना भी जरूरी है. ठीक है, तो एरर डिटेक्शन भी फाइंड आउट किया भाई साहब ने. and deliver the packet to the upper layer protocol and deliver the packet to the upper layer. ठीक है, so deliver the packet to the upper layer. तो भाई साहब ये जो वर्ड है प्रोसेसिंग, इस प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है, ये चार काम इसके अंदर होते हैं. तो ध्यान रखना, ये वाइवा क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारे वाइवा क्वेश्चन निकलते हैं, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी निकलते हैं, इसलिए ध्यान रखना. मैं इसके लिए थोड़ा आपको एकदम इसको टाइम लेके आपको बता रहा हूँ. हालांकि टॉपिक मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा टाइम जानबूझ के ले रहा हूँ बिकॉज इसमें से काफी सारे वाइवा क्वेश्चन निकलते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोसेसिंग टाइम? द प्रोसेसिंग डिले इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ रिसीवर. बिकॉज प्रोसेसिंग कौन करने वाला है, रिसीवर करने वाला है. सेंडर थोड़ी कर रहे हैं प्रोसेसिंग. द प्रोसेसिंग विल बी डन बाय योर रिसीवर ओनली, because it is going to receive the packet, it is going to remove the header. header कौन रिमूव करेगा, सेंडर रिमूव करेगा नहीं, बल्कि रिसीवर करेगा. सो रिसीवर इज गोइंग टू रिमूव द हेडर, मतलब जो हेडर के ऊपर जो चिट्ठी लगी रहेगी, एड्रेस की चिट्ठी, वो सब फाड़ेगा, निकालेगा. जो पैकेटाइजिंग किए थे वो सब निकालेगा, उसमें उसको चेक करेगा कहीं टूटा उटा तो नहीं है भाई साहब मेरा 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 पार्सल. तो क्या हुआ, ये एरर डिटेक्शन देख लिया, एंड देन हो गया, अच्छा ये किसका है, अच्छा मेरे भाई का है, तो मैंने लिया और उसको मतलब डिलीवर कर दिया, मेरे भाई को दे दिया. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ प्रोसेसिंग बाय द रिसीवर. सो ये चारों काम करने में जितना टाइम लगता है, इस टाइम को हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग डिले. ओके, तो प्रोसेसिंग टाइम और प्रोसेसिंग डिले इज दैट ओनली. The processing delay may be different for each packet, but normally it is calculated as an average. Okay, यहाँ पर देखो अगेन वाइवा क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूँ मैं अगेन, दिस इज द वाइवा क्वेश्चन.
you have got one packet, two packet, third packet, fourth packet and five packet. Okay, so you are going the sender is sending it from the sender to the receiver. ठीक है, ये आपका सेंडर, ये आपका रिसीवर, ध्यान से देखना। ठीक है, पैकेट वन को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, और उसको मतलब यहाँ से यहाँ गया, इसको लगा फॉर एग्जांपल 2 सेकेंड लगा प्रोसेसिंग के लिए। आई एम जस्ट टॉकिंग फॉर द प्रोसेसिंग ओनली। ठीक है, तो 2 सेकेंड लगा। सेकेंड वाले पैकेट को प्रोसेसिंग के लिए 2.1 सेकेंड लगा। थर्ड वाले इसको प्रोसेसिंग के लिए हो सकता है 2.5 सेकेंड लगा। फोर्थ वाले पैकेट को हो सकता है 1.9 सेकेंड लगा। एंड देन फिफ्थ वाले पैकेट को हो सकता है 2.2 सेकेंड लगा। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक पैकेट का जो प्रोसेसिंग डिले होगा दैट मे बी डिफरेंट। ओके, द प्रोसेसिंग डिले फॉर ऑल द पैकेट्स विल बी डिफरेंट। ओके, so now what we have to do, we have to take an average of for calculation of processing delay. For calculation of processing delay we have to take the average of all these values. ठीक है, तो इन सब का आप लोगे, मतलब एवरेज लोगे तो एवरेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। so the average will be taken for the further calculation if it requires. समझ में आ रहा है आप लोग को? बताओ, मुझे कमेंट में डाल के बताओ अगर आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है समझ में तो मुझे बताओ। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर आपको सोचने की समझने की ज़रूरत ही नहीं है। बस जितना बता रहा हूँ उतना आप देखते जाओ, दैट विल बी इनफ फॉर यू। ओके, आई एम श्योर अबाउट इट। Then we have fourth type of queuing delay, that is the delay that is queuing delay. अब मैंने आपको और एक चीज़ बताया था, अगर आपको याद रही होंगी तो so I told you that we have, this is my sender and this is my receiver. ठीक है, ये भाई साहब मेरे सेंडर है, ये सब मेरे रिसीवर है। तो मेरे सेंडर एंड रिसीवर when they transmit the packet they maintain one type of queue. okay, या जिसको हम लोग बोलते हैं बफर। ओके, ज़्यादा मोटी हो गई। हाँ, तो ये हो गया हमारा बफर। थोड़ा इसको रब कर लेते हैं भाई साहब, अच्छा नहीं दिख रहा है। ये है हमारा बफर और बोलेंगे क्यू। ठीक है, अब इसके अंदर होते हैं अलग अलग सेक्शन। ठीक है, अलग अलग सेक्शन मतलब कि इनके पास में, जैसे हमारे क्लिनिक है और क्लिनिक के अंदर नंबर ऑफ चेयर्स होती है, तो अगर उतने पेशेंट अगर वेटिंग में हैं तो वो लोग बैठेंगे, जो नहीं है उनको हम लोग भगा देंगे कि भाई मतलब भगा देंगे मतलब बाहर खड़े रहेंगे, भाई बाहर खड़े रहो, अंदर जगह नहीं। फिर पेशेंट क्या करता है, एक एक को अंदर लेगा, उनको देखेगा, उनको एग्जामिन करेगा, देन प्रिस्क्रिप्शन एंड ट्रीटमेंट एंड इंजेक्शन वॉट एवर जो भी उनका प्रोसेसिंग है वो करके उनको एक एक करके लेगा। ठीक है, तो सेंडर रिसीवर, दिस इज बफर एंड दिस इज बफर। if you remember then these buffers are called as input buffer and output buffer, या input queue and output queue। ठीक है, so this is basically a buffer or queue। ठीक है, so this is input and this is output। ठीक है, ये आपका सेंडर है, आपका रिसीवर है। in this case this is your sender and this is your receiver, so I can say this is the output buffer and this is the input buffer। ठीक है, इतना क्लियर है? सेंटर के पास में फर्स्ट पैकेट आया, सेकंड पैकेट, थर्ड पैकेट, फोर्थ पैकेट, फिफ्थ पैकेट, सिक्स्थ पैकेट एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट पैकेट को हम लोगों ने यहाँ पे रखा। ठीक है, सेकंड पैकेट को यहाँ पे रखा, थर्ड को रखा, फोर्थ को रखा, फिफ्थ को रखा, सिक्स्थ को रखा। ठीक है, अब ये फर्स्ट पैकेट को हम लोगों ने अब एक एक करके भेजेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि चलो रैंडमली किसी को भी उठा दिए भेज दिए। तो फर्स्ट पैकेट विल बी सेंड। अब ये भाई साहब आपके जा रहे, अब ये जाते जाते आ गए यहाँ पर। ठीक है, इनको आके फर्स्ट पोजीशन मिल गई, इनको यहाँ पर बैठा दिया हम लोगों ने, डॉक्टर साहब आए और आके इनकी प्रोसेसिंग चालू कर दी। अब ये जो आपका पैकेट है ये प्रोसेसिंग के लिए चला गया रिसीवर के पास में। वैसे ही आपका सेकंड पैकेट ऑन द वे था, सेकंड मतलब ये सब साथ में हो रहा है। ठीक है, साथ में हो रहा है और आके आपका यहाँ पर रुका था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, सेम वे जैसा क्लिनिक का होता है वैसे ही कुछ यहाँ पर होता है। तो ये सिनेरियो हम लोग को समझे। अब हम लोग देखेंगे क्यूइंग डिले क्या है। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है ये भी, वैसे ही जैसे मैंने बताया। क्यूइंग डिले क्या नॉर्मली हैपेंस इन अ राउटर में बेसिकली ये आपका नेटवर्क है। ठीक है, ये आप सोर्स है, ये आप डेस्टिनेशन है,
ये आपका राउटर, 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 एंड ऑल आर कनेक्टेड, ठीक है। सी दिस इज द नेटवर्क बेसिकली, सोर्स को और डेस्टिनेशन। तो ये आपके राउटर पे होता है हमेशा, क्या होता है, क्यूइंग डिले। तो हर राउटर अपने पास में एक इनपुट एंड आउटपुट बफर मेंटेन करता है कि यहाँ से लेगा यहाँ देगा, जैसे रावण के मतलब हाथ इतने होते इसके, तो बेसिकली जो है मतलब ऐसा है कि यहाँ से लेगा और यहाँ पे देगा, ठीक है। तो यहाँ से जो लेगा उसको मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, यहाँ से मैं इनपुट लूंगा और यहाँ से मैं आउटपुट दूंगा, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई बीच में राउटर हो, यहाँ कोई बीच में राउटर हो, ऐसा ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। और जहाँ पर हमारा सोर्स है अभी फिलहाल, वो भी एक राउटर है, ठीक है। तो क्यूइंग जो क्यूज मेंटेन होती है वो कहाँ मेंटेन होती है, द क्यूज आर मेंटेन एट राउटर लेवल। जब भी एक सर्कल बना के उसमें मैं क्रॉस सिंबल दिखाऊं, इसका मतलब ये क्या है, एक राउटर है, ठीक है। नेटवर्क के टर्म्स में, नेटवर्क की टर्मिनोलॉजीज में इस सिंबल को राउटर बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ अगर आपको मिला, मतलब ऐसा कुछ स्क्वायर स्क्वायर शेप में मिला और ऐसा कुछ अगर मिला, तो ये आपका होता है स्विच, ठीक है। ये स्विच होता है और ये राउटर जैसा होता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है बट ये होता है। So a router has an input queue connected to each of its port and store packets waiting to be processed. Okay, so the same thing जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। The router also has an output queue। तो एक राउटर के पास में इनपुट क्यू एंड आउटपुट क्यू होता है, ठीक है। तो इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। तो ये इनपुट से एक जगह से इनपुट पोर्ट से लेगा और उसको चेक करेगा अपने राउटिंग टेबल में, ढूंढेगा कहाँ पे इसको डालना है, बिकॉज राउटर के बहुत सारे हाथ होते हैं, ठीक है। तो राउटर के तो ये इनपुट से लिया, अब वो कहाँ कौन से पोर्ट पे इसको फॉरवर्ड करना है वो अपने राउटिंग टेबल में चेक करेगा, डिसीजन लेगा और डिसीजन लगा के फिर उसको फॉरवर्ड करेगा। अच्छा, उसका जो डेस्टिनेशन है वो ये वाले पोर्ट पे अवेलेबल है तो यहाँ पे फॉरवर्ड करेगा, अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे फॉरवर्ड करता, ठीक है। तो राउटर का ऐसे करेगा। So the router has also had the output queue connected to each of its output port to store packets waiting to be transmitted। अब यहाँ पे जितना टाइम लगता है यहाँ क्यू में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आपका ये पैकेट, जैसे आप लोग गए क्लिनिक में, ठीक है। तो क्लिनिक में आप पहुंचे 9 बजे, आप क्लिनिक में पहुंचे, ठीक है। आप पहुंचने के बाद में आपको सीट मिल गई, आप बैठ गए। नाउ यू आर इन द वेटिंग एरिया, यू आर इन द वेटिंग लाउंज, ओके। सो अब वेट आप कर रहे हो, तो आप 9 बजे ठीक पहुंचे, आप वेट कर रहे हो, ठीक 15 मिनट के बाद में आपका नंबर आया, ठीक है। तो आप 15 मिनट के बाद में आप अंदर गए, तो आपने कितना वेट किया, यू हैव वेटेड लिटरली फॉर 15 मिनट्स, ओके। तो 15 मिनट्स का आपका जो क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्यूइंग डिले हो गया, ठीक है। मतलब आप क्यू में रहे, आप वेटिंग में रहे, मतलब आप क्यू में लगा के, आपने लाइन लगा के, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है। आज तो सब ऑनलाइन है, लेकिन पहले लाइन में लग के इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना होता था। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए आप लाइन में लगे हैं। अब लाइन में आपको जितना टाइम लग रहा है, आप लाइन में पहुंचे सुबह 9 बजे और आपको आधा घंटा लाइन में लग गया, ठीक है, आपको क्यू में लगा, ठीक है। तो दैट टाइम विल बी नोन एज अ क्यूइंग डिले, ठीक है। तो क्यूइंग टाइम, उतना टाइम आपने वेट किया। तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है। तो आपका यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल पैकेट यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ पहुंचा, अब उसको हो सकता है उसके पहले और भी कुछ पैकेट हो, ठीक है, और भी कुछ पैकेट। तो ये पैकेट, ये पैकेट, ये पैकेट, ये सबका होने के बाद में इसका नंबर आएगा, ठीक है। तो जब इसका नंबर आएगा तो इतना पूरा टाइम जो गया है इसको हम लोग बोलेंगे क्यूइंग डिले, ठीक है। तो क्यूइंग डिले आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 2-3 एग्जांपल्स लिया हूँ तो उससे आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्यूइंग डिले है। अभी हम लोग देखते हैं एक लास्ट वाला है, लास्ट वाला नहीं है बल्कि वो जस्ट एक है टोटल डिले। तो टोटल डिले जो कैलकुलेट होता है फॉर अ पैकेट द टोटल डिले इज कैलकुलेटेड एज ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपगेशन डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले प्लस क्यूइंग डिले। तो इन सारे डिलो को, सारे टाइमिंग को जब मर्ज करेंगे तो ये हमारा टोटल टाइमिंग बन जाएगा एक पैकेट को ट्रांसमिट करने का, ओके। ये हमारा खाली डिले का पार्ट हुआ, ठीक है। पहले यहाँ तक बताओ, सबको समझा यहाँ पर? गांव वालों बताओ जल्दी, समझ में आया कि नहीं आप लोग को? लिटरली द टॉपिक्स आर डैम सिंपल। ओके गुड, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं पूछते तो कम से कम बाद में पूछ लो, ठीक है। तो आप लोग बाद में भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा वो
वो नहीं है कि यहाँ से हो गया तो काम खत्म, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वी हैव 5 minutes and we can cover the remaining 3 different points, okay? So what we have covered, just एक बार थोड़ा सा recap ले लेते हैं। We have started with the network layer performance, okay? How we can measure the network layer performance? We can measure the performance of the network layer in terms of delay, throughput, packet loss, congestion control, okay? So we have seen the very first parameter, or we can say the parameter from which the network layer performance can be measured, okay? That is delay, and we have seen 4 types of delay. Number 1 is propagation delay, so pehla wala transmission delay, propagation delay, processing delay, and the queuing delay, okay? So these are the 4 different types of delay. Viva question highly expected, ठीक है, उसमें से आ सकते हैं। Coming to the next one, that is throughput, okay? Sometimes used to call it as a throughput, or people used to call it as a throughput, okay? तो एकदम शॉर्ट में इसको बोलते हैं लोग, बट आप लोग उसको थ्रूपुट बोलो तो चलेगा, okay? So throughput at any point in a network is defined as number of bits passing through the point in a second. एक सेकेंड में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो वही चीज है। एक बार चलो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। तो भाई साहब ये है आपका केबल, ठीक है, ये आपका है केबल। चलो केबल थोड़ा मोटा बनाते हैं, ठीक है। तो एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम किसी एक यूनिट सेकेंड में, या फिर किसी एक यूनिट टाइम में, 1 यूनिट ऑफ टाइम के अंदर कितने पैकेट पास हो रहे हैं, कितने पैकेट यहाँ से गुजर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे पैकेट आपके यहाँ से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो एक सेकंड में कितने पैकेट पास हुए, तो हो सकता है एक सेकंड में 5 पैकेट पास हुए आपके, 5 नहीं 15 पैकेट पास हुए, या 10 पैकेट पास हुए, एंड सो ऑन, ऐसा हो सकता है। तो दैट विल बी द थ्रूपुट ऑफ द नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार वापस देखते हैं। नंबर ऑफ बिट्स पासिंग थ्रू द पॉइंट, number of bits passing through that point, okay? So this is my point where I am calculating the throughput, okay? So number of bits passing through the point in a second, एक सेकंड में। चलो तो हम लोग इसको स्पेसिफिक कर लिया। अब हम लोग उसको 1 यूनिट ऑफ टाइम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि 1 सेकंड बोल रहे हैं, ठीक है। तो भाई साहब एक सेकंड में इस पॉइंट पर कितने बिट्स आपके पास हुए हैं, ओके? तो वो अगर आप कैलकुलेट करते हैं, तो फ्रॉम दैट आल्सो यू कैन मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क लेयर, ओके। अच्छा चलो, ये अगर फॉर एग्जांपल एक सेकंड में यहाँ से 5 बिट्स आपके पास हुए हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपने कैटेगराइज करना है कि हाँ भाई द थ्रूपुट इज 5, द थ्रूपुट इज 5। अच्छा, किसी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग थ्रूपुट हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे ज्यादा रश हुआ हो, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा रश हुआ पड़ा है, इसके लिए हम लोग को 5 सेकंड मिला। एंड ये वाले पॉइंट पे एक सेकंड में हम लोग को मिल गया अराउंड से 10 बिट्स हम लोग को मिल गए। तो हो सकता है यहाँ पे ट्रैफिक कम है, ठीक है, और आगे मालूम पड़ा आगे बहुत कम ट्रैफिक है, तो ये पॉइंट पे हम लोग को मिला है बिट आपके 15 बिट्स पर सेकेंड हम लोग को मिला। तो एट डिफरेंट मोमेंट ऑफ टाइम, एट डिफरेंट पॉइंट, वी कैन गेट वेरिएबल थ्रूपुट, ओके। हम लोग को अलग अलग थ्रूपुट मिल सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज थ्रूपुट? थ्रूपुट इज नथिंग बट number of bits passing through the point in a second, number of bits passing through a point in a second, एक सेकेंड में उस पॉइंट से कितने बिट्स पास हो रहे हैं, दैट इज बेसिकली थ्रूपुट, ओके। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई बहुत वो नहीं है, सिंपल एक स्टेटमेंट है खाली, which is actually the transmission rate of the data at that point, मतलब उसको ट्रांसमिशन रेट से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। In a path from source to the destination, a packet may pass through several links, that is network, each with a different transmission rate. जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ से इस पॉइंट से पास हुआ तो हम लोग को 5 सेकंड मिला, इस पॉइंट से पास किए तो हम लोग को 10 सेकंड मिला, और इस पॉइंट से पास किए तो हम लोग को 15 सेकंड मिला।
तो द जो ट्रांसमिशन मीडिया अलग अलग मोमेंट पे अलग अलग लोकेशन पे उनके ट्रांसमिशन रेट उनके थ्रूपुट विल बी डिफरेंट, ओके, एज वी हैव सीन इन दिस केस। यहाँ पर 5 मिला, यहाँ पे 10 मिला, यहाँ पे 15 मिला, ओके, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ थ्रूपुट एंड दिस इज अ वन स्ट्रॉन्ग पैरामीटर फ्रॉम विच यू कैन इजीली मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क लेयर, ओके। आई होप यू पीपल्स आर गेटिंग व्हाट इज थ्रूपुट, ओके। Coming to next one, मैं अभी पूछने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, we have less time and we have to cover this and we have two more slides, that is packet loss and the congestion control, okay। then हम बाकी का हम लोग अगले से पढ़ेंगे। पैकेट लॉस, तो पैकेट लॉस के बारे में वी हैड अ डिस्कशन, हमारे पास में काफी ब्रीफ डिस्कशन हुआ, ओके। तो पैकेट लॉस तो बेसिकली होना नहीं चाहिए, सबसे पहला पैकेट लॉस होना नहीं चाहिए, ओके, बिकॉज इफ देयर इज एनी पैकेट लॉस देन दिस इज द रिस्पॉन्स, it comes under the responsibility of the sender to resend it again, okay। और रीसेंड का जब दोबारा चक्कर आएगा तो फिर आप समझ लो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो वी हैव दिस इशू, वी हैव दिस पर्टिकुलर पैकेट लॉस से भी हम लोग एक मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड एज आई टोल्ड यू दैट के वी हैव इनपुट बफर, वी हैव आउटपुट बफर एट द सेंडर एंड द रिसीवर रिस्पेक्टिवली। सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, what we used to do, we maintain a queue, okay, and in that queue the packets are stored, okay, and if the queues are full, if the buffer are full, then what will happen, the packet will automatically be dropped, okay। जिसको हम लोग बोलते हैं ना पैकेट ड्रॉप हो जाएंगे, बिकॉज बैठने की जगह नहीं अंदर, तो क्या हो जाएंगे, पैकेट आपके लॉस हो जाएंगे। पैकेट लॉस होंगे, दोबारा भेजेंगे, रीसेंड होंगे, पैकेट रीसेंड होंगे, और अगर जगह होगी तब तक तो ठीक है, नहीं जगह होगी तो वापस से लॉस होंगी, और ऐसे लॉस लॉस के चक्कर में क्या हो जाएगा, फिर काफी सारे डुप्लीकेशन भी हो सकते हैं, काफी सारे डुप्लीकेशन पैकेट हो सकता है, कहीं पैकेट सरवाइव कर गया हो तो कहीं पे डुप्लीकेशन हो सकता है, कहीं पर कंजेशन हो सकता है। तो पैकेट लॉस का ये है कुछ, वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। व्हेन अ राउटर रिसीव्स अ पैकेट while processing another packet, the received packet needs to be stored in the input buffer। डॉक्टर एक पेशेंट को देख रहा है, प्रोसेस कर रहा है, बट उसी टाइम पे दूसरा पेशेंट आया, दूसरे पेशेंट को बोलेगा कि नहीं भाई तू भी आ जा, ऐसा ऐसा बोलेगा नहीं, क्या करेगा भाई, इनपुट बफर, मतलब अपने मेरे वेटिंग एरिया में तू वेट कर, ठीक है। और जब उसका नंबर आएगा देन उसको लेगा। अ राउटर हाउएवर हैज एन इनपुट बफर विद अ लिमिटेड साइज, अंदर कैपेसिटी कितनी है, 10 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। 10 के ऊपर आ गए तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बाहर वेट करना पड़ेगा in the clinical case, but in our case that is in the at the network router के बाहर क्या होगा, the packet will be lost, the packet will be dropped, okay। the time may come when the buffer is full and the next packet needs to be dropped, वही चीज हो सकती है, तो पैकेट लॉस यहाँ पे आप करोगे। अच्छा, किसी नेटवर्क लेयर का परफॉर्मेंस चेक करने का ये भी बहुत अच्छा पैरामीटर है कि भाई कितने पैकेट लॉस हुए, ठीक है। मालूम पड़ा यहाँ पे तो ज्यादा पैकेट लॉस हुए, मतलब आपका नेटवर्क लेयर परफॉर्मेंस सही नहीं कर रहा है, ओके। अगर अगर कभी पैकेट लॉस कम है तो ये माना जाता है, ये माना जाता है कि अगर पैकेट लॉस कम है मतलब ओके दिस पर्टिकुलर लेयर, दिस पर्टिकुलर नेटवर्क लेयर इज डूइंग ग्रेट, ओके, दिस पर्टिकुलर नेटवर्क लेयर इज डूइंग ग्रेट कॉज इट हैज वेरी लेस नंबर ऑफ पैकेट लॉस, ओके। तो पैकेट लॉस कम होने की वजह से आपके इसका परफॉर्मेंस पे बहुत असर पड़ता है, ओके। लास्ट है आपका कंजेशन कंट्रोल, इट्स अ वेरी गुड मैकेनिज्म फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क लेयर, बिकॉज फ्रॉम दिस कंजेशन कंट्रोल यू कैन इजीली prevent the congestion and you can remove the congestion, okay। but finally जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि आप लोग हाईवे पे या आप लोग मतलब लॉन्ग जर्नी करते हो तो उसमें बहुत सारे जो हाईवेज होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू go to that Mumbai Pune expressway, then there will be some kind of policy, some kind of instructions are hooded over there and they should be चलो अगर आपकी LMV है तो आप राइट साइड से चलो, और HMV है तो आप लेफ्ट से चलो, और you need to maintain the speed also because this is Mumbai Pune express highway and it is expected that you must travel and you must go with this particular speed 60 70 80 जो भी स्पीड मेंशन किया है स्पीड में चलो, because others are going to that speed only, okay। अगर आप कभी स्लो में चलेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो some kind of instructions are put over there, so that is nothing but for the prevention of any kind of to prevent any kind of accident, okay।
इसी एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे उन्होंने इंस्ट्रक्शन लगा के रखे हैं। इफ यू फाउंड एनी इमरजेंसी, इफ यू आर इन एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, देन यू कैन कॉन्टेक्ट at each and every 500 meter there is a phone booth, okay, you can contact to the emergency number, okay, and come over there, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती है रोड के किनारे पर, ओके, हाईवेज जो बेसिकली जो हाईवेज होते हैं बड़े हाईवेज, वहां पर जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे इज अ काइंड ऑफ हाईवे जहां पर आप अगर एक बार चढ़े तो फिर उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत बहुत देर के बाद में उतरने के आउटलेट्स हैं, ठीक है। तो वैसी जगह पर कम से कम ये इंस्ट्रक्शंस होती है। इन द सेम वे वी हैव सम काइंड ऑफ पॉलिसीज, ओके। कंजेशन तो आप लोग को मैंने बता ही दिया था कंजेशन क्या है। तो कंजेशन इज बेसिकली यू नो at any moment of time, at any moment of time, at any place, at any point in the medium, मैं डायग्राम से बता दूं आपको, हालांकि टाइम हो चुका है आपका, बस ये लास्ट में आपको थोड़ा सा बता दूं। तो भाई साहब ये आपका मीडियम है और ये आपका पॉइंट है, ठीक है, दिस इज द पॉइंट। तो इस पॉइंट पर हो सकता है, इस पॉइंट पर हो सकता है, ये आपका जो पॉइंट है, हो सकता है इसके ऊपर नंबर ऑफ पैकेट बहुत ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। जो यूजुअल पैकेट्स होना चाहिए इन यूजुअल पैकेट से बहुत ज्यादा हो गए। तो ये ज्यादा पैकेट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर क्या इसको ये पर क्या हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, रश हो जाएगा, भीड़ भाड़ हो जाएगी। जैसे होता है ना हमारे ट्रैफिक में, हम लोग जाते हैं तो बीच में रास्ते में ट्रैफिक मिल जाती है, यानी कि यूजुअली 2 कार्स आर एक्सपेक्टेड, ये आपकी 2 लेन है, ठीक है, आपका जाने का रास्ता है, तो 2 कार्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेन, दिस पर्टिकुलर। लेकिन हो सकता है बीच में एक बाइक वाला आ जाए, यहाँ बाइक वाला आ जाए, यहाँ साइकिल वाला आ जाए, यहाँ पे एक कार आ जाए, यहाँ पर एक कार ऐसी खड़ी हो जाए, ठीक है, यहाँ पर एक कार ऐसी खड़ी हो जाए। सो सम काइंड ऑफ सिचुएशन जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं अपनी रियल लाइफ में कंजेशन। तो वैसे ही यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्या है कि भी यहाँ पर कुछ पैकेट हो, जैसा आइडियल कंडीशन बता दूं आपको मैं, यहाँ पर कुछ पैकेट हो इस तरीके से, बस ऐसे चल रहा हो। बट जब ये सिचुएशन आ जाती है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कंजेशन। Usually more than expected packets are present at any moment of time at any point in the medium. हमारे मीडियम के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर मोर देन एक्सपेक्टेड पैकेट्स वहां पर जमा हो गए, वैसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कंजेशन, ओके। एंड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज टू बी मेंटेन, ओके। सो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कंजेशन, एंड दैट congestion has to be removed. And for that we have two types of congestion. One is the open loop congestion control and second is closed loop congestion control. Open loop congestion control are nothing but the policies. जैसे मैंने आपको बताया सड़क के किनारे इंस्ट्रक्शंस होती है, भाई ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ठीक है, वैसी इसमें पॉलिसीज होती है। और क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल में एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद में अब क्या करना है, भाई देखो एक्सीडेंट हो गया तो ये करो, आप कॉल करो, इमरजेंसी बुलाओ, ये करो वो करो, तो इसमें स्ट्रेटजीज होती है। सो ओपन लूप एंड क्लोज लूप we'll learn in the next topic, okay, sorry, in the next session, okay. So thank you everyone for listening, and we'll stop over here. Let me give you the attendance sheet first. मैंने टाइम आप लोगों को ज़्यादा लिया हूँ, 10:54 थ्रूपुट को मेंटेन करने के लिए है कंडीशन। वेरी गुड, almost all are connected and basically जो नेटवर्क लेयर को परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे तो इन्हीं सब पैरामीटर से करेंगे।